So today I will continue with time value of money. We will discuss more advanced sum and normal sums also of compound interest, present value, future value, annuity, and various others. And there will be one more lecture on this topic, time value. And you all can share the sums of this year also if you want to discuss any sums, right? Anyone want to ask anything before that, before I start? So yesterday, I have explained some theory of financial management. The files I have already shared. And I have explained the notations and formula that we are going to use in this topic, right? And we have started with the sheet, important too. And we have discussed only the first three very simple sums of simple interest. So today I will start with this fourth sum, which is based on the compound interest, right? So this is the question, and everyone should know the formula that I already mentioned yesterday and in the lecture. You all should know the formulas that I explained yesterday. And those who have missed should watch the recording and note it down as the earliest so that you are able to understand the topic. Here, what is written in this question number 4? What sum will amount from rupees 5,000 in 6 years at 8.5% per annum, right? So it is written, the 5,000 rupees will become how much in 6 years if the rate of interest is 8.5% per annum. So our present value or principal is 5,000. कल भी मैंने बताया था कि first we should write the given. First, after reading the question of any time value, because these are word problems, always write what is given. What is 5,000 that you should be able to identify? It is present value or principal. What is n? N is number of years, that is 6. And small I is rate of interest divided by 100, yani 8.5 divided by 100, that is 0.085. And you have to find what sum will amount. यानी 5,000 6 साल के बाद कितना बन जाएगा. और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम कैसे निकालते हैं. ए क्या है? एक्यूमुलेटेड अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट में, राइट. ये सब नोटेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए. तो ए का ये फॉर्मूला है कि 6 इयर्स के बाद वो क्या बन जाएगा. उसके लिए ये डायरेक्ट है. पी और पीवी सेम होता है, राइट. पी इधर मैंने वो भी लिखा है, पीवी और पी दैट इज वन इन द सेम. So here we will use this formula, A is equal to P into 1 plus I raised to N. So that formula I have used here. And that is very simple question. 5,000 into 1 plus 0.085 raised to 6. And you will need a scientific calculator for all this, right? Scientific calculator भी तुम लोगों को लेना पड़ेगा. 91 ES शायद है model number, right? So that you will have to बाय. किसी के पास है साइंटिफिक? ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. ये तो हम नॉर्मली कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं. 1 प्लस 0.085 तो तुम नॉर्मल कैलकुलेटर में कर सकते हो. जो 12 डिजिट कैलकुलेटर होता है तो वो आएगा 1.085 और इनटू करके 5 बार इक्वल टू दबाने, क्योंकि रेस टू 6 है. तो 1.085 को इनटू करके 5 बार इक्वल टू दबाओगे अगर, तो तुम्हें 1.085 रेज़ टू 6 का आंसर मिल जाएगा. और फिर जो भी आएगा उसको 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू 8157.33. राइट. क्लियर है ये सबको? क्लियर है? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर. ओके. और जिसको लिखना है ना साइमल्टेनियसली लिखते जाओ. बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन है, जो आगे बढ़े आएंगे उसमें में और भी टाइम होगा. एंड व्हाट इज रिटन हियर? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹2,500 फॉर 15 months at 8% कंपाउंडेड क्वार्टर. सी अब ये सब सम तो नॉर्मल है, लेकिन अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली,
या कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऐसा कुछ भी आता है, तो यहाँ पे देखो कोई भी फॉर्मूला में चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला सब सेम रहेंगे, बट व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आई हैव रिटर्न हियर, और ये तुम लोगों को नोट भी कर लेना है और याद भी रखना कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है क्वेश्चन में, तो तुम्हें आई को 2 से डिवाइड करना है और एन को 2 से मल्टीप्लाई करना है. If in the question it is given compounded half yearly, divide I by 2 and multiply n by 2. Similarly, for quarterly, we will divide I by 4 and multiply n by 4. And for monthly, we will divide I by 12 and multiply n by 12. Why? Why? Because there are 2 half years in 1 year. मतलब मैं एक साल के लिए अगर इन्वेस्ट करता हूँ, तो अगर मैं उसको हाफ ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 हाफ ईयर आते हैं. 1 year is equal to 2 half years. 1 year is equal to 4 quarters and 1 year is equal to 12 months, right? So therefore बस ये याद रखना है कि आई को तो डिवाइड करना है और एन को मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो ये नोट डाउन कर लो. ये कब करना है? जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली और ऐसा कुछ दिया होगा तो ही करना है. क्लियर है ये सबको? और वो शायद जो जो कैलकुलेटर का मॉडल है ना, वो तो कॉलेज में बताएंगे कौन सा लेना है. वो कैशियो का होता है, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है FX991ES करके है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार कॉलेज फैकल्टी से कंफर्म कर लेना, और जिसको भी बाय जितनी जल्दी कर लोगे वो अच्छा है, राइट? साइंटिफिक कैलकुलेटर. ES या ES प्लस आता है, राइट? दिस मॉडल नंबर यू विल नीड. और किसी को अगर याद है कॉलेज में बोला कौन सा है, तो तुम लोग वो भी चैट में लिख सकते हो, तो अदर स्टूडेंट्स कैन बाय दैट. मुझे तो यही याद आ रहा है, राइट? So here it is written compounded quarterly, and here see find the compound interest. तो पहले present value तो दिया है 2500, n is 15 months, months में दिया है, year में नहीं है, and I is 8%. तो I यानी 8/100, small I is 0.08. बट क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो हम I को तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, I को डिवाइड बाय 4 करेंगे. तो आई को हमने डिवाइड बाय 4 किया, 0.08 डिवाइड बाय 4. तो आई का वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे वी विल टेक 0.02. अब एन क्योंकि मंथ्स में है, बट ये रूल किसके लिए? इफ एन इज इन ईयर्स, एन अगर ईयर्स में है तो हाफ ईयरली के लिए इंटू 2 और इंटू 4 क्वार्टरली के लिए और इंटू 12. इन अदर वर्ड्स, अगर 15 मंथ्स विल बी हाउ मेनी क्वार्टर्स, उसमें कन्वर्ट करना है. तो ये मंथ्स है, 15 मंथ्स मतलब कितने क्वार्टर होते हैं, वो नॉर्मल लॉजिक है. क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 15 डिवाइड बाय 3 करोगे तो भी तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा कि एन इज 5 क्वार्टर्स. एन इज 5 क्वार्टर्स. बट क्योंकि मैंने ये लॉजिक जो मैंने यहाँ लिखा है वो इस्तेमाल किया है, वो यूज किया है, तो क्वार्टरली में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या लिखा है, अगर एन ईयर में है तो हम ईयर को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो डायरेक्टली यू कैन 15 डिवाइड बाई 3 से भी 5 आ जाएगा एन. और मैंने 15 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट किया है, तो 15 डिवाइड बाई 12 किया है, तो दैट इज 1.25 ईयर्स, और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया है,
So n is 5 quarters. So while solving this, what we will do is we will take n as 5 and I as 0.02 because in the question it is given compounded quarter. So this is important. This is important. ये समझा ना, कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली दिया है, तो फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, आई और एन को चेंज करना है। क्लियर है सबको? दिस इज क्लियर, समझा? तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा, बट उन्होंने ए नहीं पूछा है। व्हाट इज ए? ए वो है कि 15 महीने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू, बट दे हैव आस्क्ड कंपाउंड इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन, दे हैव आस्क्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? ए माइनस पी प्रिंसिपल। So therefore, A minus P, this is your compound interest. 2760 हमें मिलेगा 0.20 पैसा, and we have invested 2500 जो हम माइनस करेंगे, तो 260 rupees 20 पैसा is the interest amount, compound interest amount. These are very simple sums. जो मेजर सम्स तुम लोगों को ज्यादा सीखने हैं वो है एन्युटी वाले एंड ऑल, एंड प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू वाले, बट दिस आर जस्ट द बेसिक सम्स फॉर नॉलेज, राइट? फिर भी किसी को ये नहीं समझ रहा है तो प्लीज आस्क। क्लियर है सबको? एवरीवन इज क्लियर? सर मैंने एक थोड़ा डिफरेंट वे में किया। मैंने जो प्रेजेंट वैल्यू है उसे थर्ड ब्रैकेट के बाहर डाल के थर्ड ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला डाला 1 + i टू द पावर n -1। तो मेरा खाली जो डेसिमल पॉइंट्स में है वो नहीं आ रहा, बाकी वो भी राइट है, वो भी राइट है, चलेगा। हाँ, डेसिमल्स थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, वो राउंडिंग ऑफ की वजह से, ठीक है? नो प्रॉब्लम, थैंक यू। यस वेलकम। So here now find the present value of rupees 2000 due in 6 years if money is worth compounded semi-annually at 5%. Find the present value, यानी present value तो हमें ढूंढना है 2000 in 6 years। तो 2000 क्या है? फ्यूचर यानी accumulated value जो हमें 6 साल के बाद मिलेगा। n is 6 years and 5%, क्योंकि सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली, तो n को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो 6 into 2 n will be 12, और i को डिवाइड बाय 2 किया तो that is 0.05 divided by 2, so 0.025, because the word semi annually is there। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, p ढूंढना है, a दिया है एंड i दिया है और n दिया है, बट n हम लोग सेमी एनुअली है तो जो नया हमने निकाला into 2 और डिवाइड बाय 2 करके वो हम यूज करने वाले हैं, और फिर हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल, तो यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू 1487.20। यू कैन चेक द कैलकुलेशन। सबको आ रहा है, सबको समझ रहा है? लिख के करोगे, कैलकुलेट करोगे तो और समझेगा। ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन है। 1 + 0.025 raised to 12। साइंटिफिक में तो ये हम डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर साइंटिफिक नहीं है तो 1 + 0.025 नॉर्मल कैलकुलेटर में, और उसके बाद इनटू और 11 बार इक्वल टू दबाओगे तो ये 1.3448 वैल्यू तुम्हें मिलेगी। बट साइंटिफिक बाय करना ही पड़ेगा, अभी तो ठीक है किसी के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्स एंड एवरीथिंग, फॉर BA ऑल्सो you all will need scientific calculator, right? So do buy at the earliest। CEC भी आ जाएगा जून एंड में, इसी वीक में सबको बाय कर लेना है। तो दिस आर बेसिक सम्स जस्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? किसी को डाउट है इन दिस क्वेश्चंस और एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन और डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, यू कैन आस्क मी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू। जैसे ये था कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अब प्रेजेंट वैल्यू के हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।
ये सब ना जो इसमें है, इसमें सब एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए न्यूमेरिकल्स है. You need to understand the concept. Suppose someone promises to give you rupees 1000 3 years hence. कोई तुम्हें 3 साल के बाद 1000 rupees देने वाला है. What is the present value of the amount if interest rate is 10%? सिंपल है, 3 साल के बाद 1000 मिलेगा तो 1000 क्या हो जाएगा हमारा फ्यूचर वैल्यू. 1000 इज फ्यूचर वैल्यू. 3 साल के बाद मिलेगा तो n इज 3. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है तो 10/100 परसेंटेज है तो हम अपॉन 100 लेते हैं तो दैट इज 0.10. प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? ये रहा, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन, या स्मॉल आर भी यूज कर सकते हैं. आई के लिए कल भी मैंने बोला था तो हम आर भी लिख सकते हैं उसको स्मॉल आर. तो एफ बी अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन, so that is 1000 upon 1 plus 0.10 raised to 3. और इसको सॉल्व करोगे तो you will get this value, right? Clear है? This is also clear now to everyone? सबको क्लियर है? Any doubt? No doubts. See, this is the next question. जिसको मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ. Right. ये खाली क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है. A firm invests rupees 20,000 in a project with a life of 3 years. The projected cash flow are as follows. जो मैंने ग्रीन कलर किया वो सिर्फ क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन में बोला है कि एक फर्म 20,000 एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है और वो प्रोजेक्ट का लाइफ 3 इयर्स है और उस प्रोजेक्ट से जो कैश मिलने वाला है फर्म को ईयर 1 एंड पे 8,000, ईयर 2 एंड पे 10,000 और ईयर 3 एंड पे 9,000, राइट. तो टोटल फर्म को 27,000 मिलने वाला है और 20,000 इन्वेस्ट कर रहे. द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% पर एनम. फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इंडिविजुअली फॉर ईच ईयर. हर साल का इंडिविजुअली भी निकालना है और वो लोग टोटल भी बोल सकते हैं. टोटल जब हम निकालेंगे तीनों प्रेजेंट वैल्यू का टोटल, उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू भी बाद में बोलेंगे. नेट प्रेजेंट वैल्यू भी एक कॉन्सेप्ट है. तो पहले तो इंडिविजुअल हमें निकालना है तीनों साल का इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच ईयर. तो यहाँ पे कैश फ्लो तो यहाँ पे दिया ही है. ये जो कैश फ्लो है ये फ्यूचर वैल्यू है क्योंकि 8,000 एक साल के बाद मिलने वाला है. ये 10,000 भी फ्यूचर वैल्यू है 2 साल के बाद मिलने वाला. 9,000 भी फ्यूचर वैल्यू है 3 साल के बाद मिलने वाला है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया है 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो दैट इज योर आई. स्मॉल आई 10/100 0.10. प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 प्लस आई रेज टू एन. तो पहला 8,000 का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू 8 है और उसका n कितना है 1. तो 1 प्लस 0.1 दैट विल बी 1.1 रेज टू 1. तो 8,000 अपॉन 1.1 रेज टू 1, दिस विल गिव यू 7273. तो ये 8,000 का प्रेजेंट वैल्यू आया, प्रेजेंट वैल्यू 1 of the first year. Similarly, we will calculate the present value of the second year and third year. So present value of the second year, future value is 10,000 here upon 1 plus 0.1 raised to 2 because here n is 2. यहाँ पे n 2 years है, right? तो ये 10,000 का present value आएगा. Then present value 3 of the third year, that is 9,000 is the future value that we are going to receive at the end of third year. So n year we will take 3. Rate of interest will be same 0.10.
So this is the value of the third year cash inflow. And total present value कैसे आएगा? ये तीनों को ऐड करोगे तो 7273 plus 8264 plus 6762. So we will get total present value of what we will receive in the future of all this three cash inflow will be 22,299. And what is net present value? What is net present value? Net present value होता है कि ये जो total present value है, जिसको हम present value of cash inflow भी बोलते हैं, उसमें से जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया वो माइनस करेंगे, तो जो बचेगा दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो हमें टोटल जो मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू 22,299 है, और हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आज वो 20,000. तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है. तो अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम एनपीवी भी बोलते हैं, वो पॉजिटिव होता है तो हमें वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए. और अगर एनपीवी नेगेटिव आता है तो हमें वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. राइट, वी शुड इन्वेस्ट ऑन इन दोज प्रोजेक्ट्स व्हिच एनपीवी इज पॉजिटिव. और ये एनपीवी वाला कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू में तो कुछ एक दो सम हैं, बट कैपिटल बजटिंग करके एक अलग टॉपिक होता है और उसमें हम एफएम भी सीखेंगे. एफएम में ही कैपिटल बजटिंग करके होता है टॉपिक, जिसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू, पेबैक पीरियड, एआरआर and various other topics we will learn. So this is clear to everyone? This is clear to everyone? Any doubt in this? Okay. Yes, किसी को डाउट है कुछ? So, No, sir. Yes, Riya. so I just want to clarify one thing. In the previous sum, as we see that for the first year, it is raised to 1, right? Yes, yes. The eighth sum only. And now the PV is 2. I mean, it is for this 1 year only, right? Year in the second year. This, Yeah. So it should be No, raised to 1 only, na, not no, 2. this is for second, na. Year it is given. This is question, na. So year it is given. 8,000 we will receive at end of the first year. This 10,000 we are going to receive at the end of the second year, na. Year are written. ये अमाउंट हमें इतना इतना मिलेगा ये साल के एंड में. 8,000 फर्स्ट ईयर के एंड में मिलेगा, 10,000 सेकेंड ईयर के एंड में मिलेगा. So to find the present value of 10,000, because we are going to receive it after 2 years, so therefore n will be 2 for it, right? Clear है क्या? समझा क्या? हाँ सर, एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना इंडिविजुअली, सो आई थॉट कि एक एक साल के हिसाब से वील हैव टू डू इट, तो रेज टू 1 ही आएगा सबका. नहीं, जो ईयर यहाँ रहेगा ना बाजू, हाँ. only year you have to take here. ओके. Fourth year का है तो we will take 4, fifth year का है तो we will take 5 and like that, right? Clear? अंडरस्टूड सर, थैंक यू. And this sum, अभी ये तो बहुत छोटा है, और कभी कभी ना वो लोग ये नहीं पूछेंगे कि इंडिविजुअली निकालो, तो हमें अलग अलग तो निकालना नहीं है. बट यूजुअली इस तरह का सम आई रिकमेंड बाय टू सॉल्व बाय प्रिपेयरिंग दिस टेबल. इस तरह का अगर बड़ा सम आता है, जैसे कि टेक्स्ट बुक में तुम्हारे है भी, यहाँ पे मैं बताता हूँ, टेक्स्ट बुक के मैंने सॉल्व किए हैं यहाँ पे कोई सम, ये वाला 6.12. तो हम ये टेबल बना के सॉल्व करेंगे ना तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज अलग अलग इंडिविजुअली इसको करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और ये टेबल में इजी हो जाता है. ये टेक्स्ट बुक के सम भी मैं डिस्कस करूंगा, तो देखो ये भी. तो ये टेबल वाले में क्या करना है, इसमें सिंपल है कि ये 2 कॉलम तो क्वेश्चन में दिया ही है. यहाँ पे मैंने वो 2 कॉलम तो ऑलरेडी सेम ही लिख दिया है, राइट? ईयर एंड कैश इनफ्लो. Then what you have to prepare these 2 columns. PVIF is your present value interest factor, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, यहाँ पे 10% दिया है, तो 10% पे हमें ये PVIF निकाल देंगे, और फिर ये कैश इनफ्लो को PVIF से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये लास्ट वाला कॉलम मिलेगा और उसका टोटल लेंगे,
तो ये टोटल पीवी हमारा आ जाएगा, जो ऑलमोस्ट सेम है, 50 पैसे का डिफरेंस है बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो दिस इज ऑल्सो वन मेथड। तो इसमें ये मेथड फॉलो करने के लिए याद क्या रखना है कि एक तो हाउ टू कैलकुलेट दिस पीवीआईएफ, दिस इज इम्पोर्टेंट कि सर ये पीवीआईएफ क्या है और कैसे निकालेंगे। तो पीवीआईएफ का फॉर्मूला है 1/1 + i⁻n। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है फॉर्मूला में पीवीआईएफ का ये 1/1 + i⁻n। तो साइंटिफिक में निकाल सकते हो, बट पीवीआईएफ ना नॉर्मल 12 डिजिट कैलकुलेटर में बहुत इजीली निकाल सकते हो, बहुत इजीली। अब 10% है तो 10 को डिवाइड बाय 100 करना है, पहले जो भी परसेंटेज रहेगा पहले उसको डिवाइड बाय 100 करना है, तो दैट विल बी 0.1। नॉर्मल कैलकुलेटर है उसमें भी तुम लोग साथ में कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, और साइंटिफिक में तो जो फॉर्मूला है वो वैल्यू डाल के भी तुम लोग निकाल सकते हो। तो इन शॉर्ट हमें करना क्या है, जो परसेंटेज दिया है उसको डिवाइड बाय 100, तो 10 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.1, देन +1, उसमें 1 ऐड करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1.1। अब तुम्हें करना क्या है साइंटिफिक में या नॉर्मल कैलसी में। नॉर्मल में पहले बता देता हूँ, 1 डिवाइड बाय 1.1 करना है, 1 डिवाइड बाय 1.1 और इक्वल टू दबाना है, तो जो आंसर आएगा दैट इज योर पीवीआईएफ ऑफ फर्स्ट ईयर। 3 डिजिट मिनिमम लेना होता है, 4 डिजिट मैक्सिमम लेना होता है। यू कैन टेक अप टू 3 डिजिट ऑल्सो, मैक्सिमम इज 4 डिजिट। तो 1 डिवाइड बाय 1.1, 1.1 कैसे आया, जो भी परसेंटेज दिया है डिवाइड बाय 100 +1, तो 10 डिवाइड बाय 100 +1 दैट इज 1.1। यस, इन शॉर्ट यही 1 + i जो आएगा, 1 + i, 1 + i इज 1.1 ना, तो 1 डिवाइड बाय 1 + i, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 और इक्वल टू दबाओगे नॉर्मल कैलकुलेटर में तो फर्स्ट ईयर का मिल जाएगा। उसके बाद बिना कोई और की प्रेस किए, कोई भी की प्रेस नहीं करना है, इक्वल टू के बाद वापस इक्वल टू ही दबाना है, तो तुम्हें सेकेंड ईयर का मिल जाएगा। फिर सेकेंड ईयर का नोट डाउन करने के बाद वापस इक्वल टू दबाना है, तो थर्ड ईयर का मिल जाएगा। थर्ड ईयर का नोट करने के बाद वापस इक्वल टू दबाओगे तो फोर्थ, वापस इक्वल टू दबाओगे तो फिफ्थ, ऐसे मिलते जाएगा नेक्स्ट ईयर का पीवीआईएफ इन नॉर्मल 12 डिजिट कैलकुलेटर। इन साइंटिफिक 1 डिवाइड बाय 1.1 फिर रेज टू 1 करना पड़ेगा, रेज टू 1 फॉर द फर्स्ट। फिर तुम्हें बैक जाके 1 हटा के रेज टू में 2 डालना पड़ेगा, फिर सेकेंड ईयर का मिलेगा। फिर बैक जाके रेज टू में 3 डालना पड़ेगा, देन थर्ड ईयर का मिलेगा। ठीक है, ये जब सबके पास साइंटिफिक कैलसी आ जाएगा, राइट, देन आई विल टीच हाउ टू यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर, क्योंकि अभी तो वैसे भी बहुत कम स्टूडेंट्स है और सबके पास है भी नहीं, राइट। तो व्हेन यू कैन चेक, यू कैन साइमल्टेनियसली सॉल्व इन द साइंटिफिक, तो जो भी डाउट आता है साइंटिफिक में भी, दैट आल्सो यू ऑल कैन आस्क मी। So this is clear. Any question regarding this table method or normal method or regarding this question? Any doubt? किसी को कुछ पूछना है? Clear है सबको? So this is how to calculate present value of a lump sum amount, single amount. ये single amount का निकाला, और ये multiple amount, लेकिन multiple में ये annuity नहीं है क्योंकि amount अलग अलग है। सेम अमाउंट हर साल मिलता है उसको तो हम एन्युटी बोलते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज फ्यूचर वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट अ फ्यूचर वैल्यू। तो देखो जो भी व्हाइट है मतलब वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, आई एम चेंजिंग द कलर व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग। तो ग्रीन इज द क्वेश्चन एंड द पिंक कलर इज योर सॉल्यूशन, ऑल दैट आई हैव एक्सप्लेन एंड द रिमेनिंग वन आई हैव नॉट एक्सप्लेन, राइट। So, if you invest rupees 5,000 today at a compound interest of 9%, what will be its future value after 25 years? 5,000 आज इन्वेस्ट करेंगे, we will invest 5,000 today. So obviously present value is 5,000. Rate of interest 9%, so I is 9/100, 0.09, N is 25.
फ्यूचर वैल्यू निकालने बोला है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज पीवी प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई रेज टू एन। फॉर्मूला है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, यू विल गेट द आंसर, राइट। क्लियर है ना? दिस इज क्लियर? वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? किसी को भी देखो कुछ नहीं समझ रहा है ना तो प्लीज आस्क का, किसी को भी कुछ भी नहीं समझता है तो पूछ लेना, अदरवाइज ऐसे नहीं कि बाद में मैं देख लूंगा या देख लूंगी, राइट। Here in time will rupees 10,000 amount to rupees 16,105 at 10% per annum, interest compounded yearly. So this is also very important. यहाँ पे अभी n ढूंढना है हमें, right? What we have to do here is we have to find n. In what time? Time is asked. The time is n. 10,000 will become 16,105. तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होता है, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होता है। तो 10,000 प्रेजेंट वैल्यू है, 16,105 फ्यूचर वैल्यू है, and rate of interest is 10%. That is also given. So that is 10 upon 100, which is 0.1. सेम हम फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का यूज कर रहे हैं, सब वैल्यू हमने यहाँ तक सब्स्टिट्यूट किया, ये तो नॉर्मल है। फ्यूचर वैल्यू was 16,105, present value was 10,000, I was 0.1, so 1 plus 0.1 is 1.1 and raised to n, and we have to find. Then ये 16,105, ये 10,000 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो 16,105 डिवाइड बाय 10,000, that is 1.6105 is equal to 1.10 raised to n, right? है ना? अब इसको तुम लोग बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ये नॉर्मल कैलसी में तो सॉल्व होगा ही नहीं, राइट। नॉर्मल कैलसी में सॉल्व करना है ना तो बहुत सिंपल लॉजिक है। अभी तो तुम लोग के पास साइंटिफिक है नहीं, सबके पास, किस किसके पास है साइंटिफिक? हाउ मेनी ऑफ यू हैव साइंटिफिक? अभी है? किसी ने भी अभी नहीं लिया है ना, अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है। नो वन हैव साइंटिफिक? ठीक है, तो देखो अभी तो मैं नॉर्मल में बता देता हूँ कि नॉर्मल में हमें क्या करना है। जब भी एन ढूंढना है ना और ये नंबर आया है तो इस 1.61 को तो भूल जाओ, एन के बाजू में क्या है 1.1 है, तो नॉर्मल कैलकुलेटर में 1.10 स्क्रीन पे टाइप करोगे और इनटू दबाओगे, 1.10 और इनटू दबाया तुम लोग ने, और फिर इक्वल टू प्रेस करोगे और साथ में काउंट भी करोगे कि कितनी बार इक्वल टू हमने प्रेस किया, और काउंट नहीं करोगे तो भी ना लेफ्ट में टॉप लेफ्ट स्क्रीन में ना एक नंबर आता है जैसे जैसे तुम प्रेस करोगे, और तुम्हें रुकना कहाँ पे है, वहां पे रुकना है जब स्क्रीन पे 1.6105 नंबर आ जाएगा। तो 1.10 इंटू और इक्वल टू 4 बार प्रेस करोगे तो तुम्हें स्क्रीन पे 1.6105 मिलेगा इस क्वेश्चन में। देखो ट्राई करके, आ रहा है किसी के पास? एनीवन इज ट्राइंग? कैलकुलेटर है अभी नॉर्मल कि नहीं? ट्राई कर रहे हो तो फिर मैं आगे जाता हूँ। समझ तो गया ना व्हाट यू हैव टू डू? क्लियर? और you can calculate in scientific also. This all I will teach in the revision lecture also, how to use the scientific. इसमें किसी को डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? नो डाउट्स? यस सर में एनी डाउट? योर वॉइस आई एम नॉट एबल टू हियर सब में, बहुत स्लो आ रही है, मुझे तो कुछ नहीं सुना, तुम कुछ बोल रहे थे। You can type in the text box. I am not able to hear your voice.
क्लियर है ना सबको? Then find the maturity value of rupees 1 lakh deposited with a company for 5 years at 8.5% compounded semi-annually, right? तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 1 लाख डिपॉजिटेड विद द कंपनी. तो प्रेजेंट वैल्यू इज ऑब्वियसली 1 लाख. एन दिया है 5 years. तो एन इज 5 years. Rate of interest is 8.5. So 8.5 upon 100, that is 0.085. But here it is given compounded semi-annually. Compounded semi-annually. तो इसके लिए मैंने ऊपर बताया कि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो हम क्या करते हैं, आई को डिवाइड बाय 2 और एन को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं. तो देयरफॉर एन मल्टीप्लाई बाय 2, तो 5 will become 10 and I 0.085 divided by 2, so it will become 0.0425, right? And then we are using the formula of future value only. क्योंकि मेच्योरिटी वैल्यू मतलब फ्यूचर, कितना पैसा मिलेगा 5 साल के बाद, पीवी इंटू 1 प्लस आई रेस टू एन. तो आई तुम्हें ये लेना है 0.0425 and raised to n also you have to take this 10 because it is semi-annually. So you will get this value. Right? This all are very basic sum. ये किसी को भी कुछ नहीं समझ रहा है तो पूछ लो. ये सब sums इसलिए तुम्हें आने चाहिए कि ये आएंगे तो आगे अब जो टफ सम आने वाले, और मोस्टली जो बहुत टफ है, एकदम ही टफ सम्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आज सब काफी सम्स ये है. आज ये पूरा शीट मुझे खत्म करना है यहाँ तक, एटलीस्ट 25th तक या 26th तक. ये तो 5 पेपर्स सॉल्यूशन है जो मैंने लास्ट ईयर एंड मोमेंट पे करवाया था. तो आई हैव टू फिनिश टिल 26. इसमें से 2-3 सम हम छोड़ देंगे, ग्रोइंग एन्युटी एंड ऑल. तो वहां तक होप आई विल एबल टू फिनिश बाय 8:30. So here this question is clear to everyone. Any doubt? फटाफट पूछो, और नहीं है ना तो ठीक है, just say no doubt or you can rest thumbs up, right? तो मुझे पता रहेगा कि समझ रहे. एकदम साइलेंट रहोगे और कुछ रिएक्शन नहीं होगा तो आई एम नॉट एबल कि समझ रहे या सब लोग सुन रहे हैं या नहीं, है ना? क्लियर? सबको समझ रहे हैं ना? अब हमारा ये इम्पोर्टेंट है एन्युटी वाला. इसमें भी सिर्फ फॉर्मूला है, बट इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अभी तुम लोगों को टेबल तो देंगे नहीं. कैसे सॉल्व करना है ये तुम लोग सॉल्व करोगे अब तो ही समझेगा. और इसमें तो सबको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी लगेगा. नॉर्मल कैलसी में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा कैलकुलेशन में. अब ये एक सम है, मिस्टर वाई इज डिपॉजिटिंग ₹8,000 एनुअली फॉर 4 years in post office saving bank account at an interest rate of 5% per annum. Find the present value of an annuity. Annuity का मीनिंग मैंने कल बताया था कि कोई भी ऐसा अमाउंट, फिक्स अमाउंट जो फिक्स पीरियड के बाद मिलेगा या हम पे कर रहे हैं, उसको एन्युटी बोलते हैं. कोई भी अमाउंट बार बार एक ही सेम अमाउंट है, अलग अलग अमाउंट नहीं, सेम अमाउंट हम पे कर रहे हैं या सेम अमाउंट हमें मिलने वाला है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद. एग्जाम्पल मैंने दिया था कि हर महीने 5,000 हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, वो भी एन्युटी है. हर साल हम 5,000 रुपये किसी को देने वाले हैं 5 साल तक, वो भी एन्युटी है. हर 3 महीने में हम 10,000 किसी से लेने वाले हैं, किसी को देने वाले हैं, वो भी एन्युटी है. और यहाँ पे दिया है कि वाई इज डिपॉजिटिंग 8,000 एनुअली, हर साल 8,000 वाई हर साल डिपॉजिट कर रहा है. तो 8,000 ना तो प्रेजेंट वैल्यू है ना तो फ्यूचर वैल्यू है, वो
एन्युटी है। तो ये एन्युटी, एन्युटी इज 8,000, कितने साल तक? 4 साल तक। एन इज 4 years and I is 5/100, 0.05। और कल मैंने एक पीवीए का फॉर्मूला लिखने बोला था, किसने लिखा था पीवीए का फॉर्मूला? किसी के पास है लिखा हुआ? यस हर्ष, एनी डाउट? यस हर्ष, एनी डाउट? हैंड रेस डाउट्स के लिए करो, समझ में आ गया उसके लिए तो हम सब करो या यस लिख दो। Anyone has the formula of present value of annuity PVA? किसी ने कल अटेंड किया था कि सब लोग फर्स्ट टाइम कर रहे? रिस्पॉन्ड करो, नहीं है तो नहीं बोलो, नो प्रॉब्लम, है तो बोलो है। ये फॉर्मूला तुम लोग लिख लोगे और ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू डाल के तुम्हें आंसर मिलेगा। दिस फॉर्मूला में a into 1 minus 1/1 plus r की जगह स्मॉल r भी लिख सकते हो या स्मॉल r भी लिख सकते हो जैसे मैंने कल बताया था, और रेज टू होल डिवाइड बाय r। तो ये जो फॉर्मूला है a इंटू के बाद, इस फॉर्मूला से तुम्हें ये पीवीआईएफए का वैल्यू मिलता है। ये दोनों फॉर्मूला, पीवीआईएफए के दो फॉर्मूला है, वो मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, ये तो तुम्हें गूगल पे भी मिल जाएगा, या पीवीआईएफ टेबल्स भी होती है। देखो पीवीआईएफ टेबल होती है जो तुम लोगों को तो अभी देंगे नहीं। और ये तो देखो फर्स्ट बैच की जो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी आईबीएस, उसका रिजल्ट है, तुम लोगों का भी आएगा। सब में ए है, खाली ओबी में भी आया था एंड उसका सीजीपीए 9.75 था, राइट। एंड दिस वाज द स्टूडेंट जिसकी वजह से मैंने आईबीएस का स्टार्ट किया। दिस वाज द फर्स्ट स्टूडेंट जो मेरी 11th से स्टूडेंट थी, अभी तो वो डिलॉइट में कर रही है 4 साल से काम, राइट। शी स्टेज इन मुंबई ओनली। तो डिलॉइट में तो बहुत मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं हर साल के। एफएम में तुम लोगों को देखो ये मिलता है पीवीएफई टेबल, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू टेबल पहले देते थे आईबीएस में, अभी 2 साल से नहीं दे रहे। तो इसीलिए क्योंकि ये मेरे फाइल में टेबल मेथड से सॉल्व किए हुए हैं, बट पीवीआईएफए हमें टेबल से मिल जाता था 3.546। पीवीआईएफए क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, और उसका फॉर्मूला क्या है? ये 1 minus 1/1 plus r raised to n upon r। तो अभी इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये पूरा साइंटिफिक में कैसे करते हैं वो तो मैं बता दूंगा, तुम लोगों को कॉलेज में भी बताएंगे और खुद से भी आ जाएगा बहुत लोगों को। तो बट आज क्योंकि मेरे पास भी साइंटिफिक नहीं है और तुम लोग के पास भी नहीं है, तो आज वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बट नॉर्मल कैलकुलेशन है 1/1 plus r। तुम लोग एक एक चीज भी साइंटिफिक नॉर्मल कैलसी में पहले कैलकुलेट करके इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हो। और ये टेबल में वैल्यू कैसे देखते हैं? जैसे कि इधर n है 4 और i है 0.05, और हमें पीवीआईएफए प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी चाहिए। तो 4 टेबल होते हैं ये, यहाँ पे देखो लिखा है। ये कौन सा टेबल है? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एफवीआईएफ का, और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है, आई की जगह उन्होंने के लिखा। ये फर्स्ट टेबल। ये कौन सा है? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, तो ये एफवीआईएफए, और एफवीआईएफए का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा है। देन दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पीवीआईएफ का टेबल, एंड द लास्ट टेबल इज योर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। तो हमारा यहाँ पे हमें क्या चाहिए? N4 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो यहाँ पे पीरियड है ये 1 2 3 4 5 लेफ्ट में, तुम लोगों को अगर दिख रहा है तो, यानी ये 4 और ये परसेंटेज है 5%। दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू, ये है इंटरेस्ट का। तो ये 4 और ये 5, तो देखो यहाँ पे दिया है ये 3.546, 5% और 4 इयर्स का पीवीआईएफए ये आएगा। तो मैंने वहां से ले लिया टेबल से, बट तुम लोगों को इसमें सॉल्व करना है।
राइट। ये इक्वेशन में तो तुम्हारा वैल्यू भी वही आएगा या एक डेसिमल इधर उधर आएगा। ये तुम लोग प्रैक्टिस करना सॉल्व करके, अगर नहीं आ रहा है कुछ डाउट है इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एवरीवन विल बी एबल टू सॉल्व ना, सॉल्व कर पाओगे। फिर भी कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क मी, आई विल क्लियर दोस डाउट साइंटिफिक बाय करने के बाद। क्लियर एनी डाउट इसमें? बुद्धिमंता, निशांत, रिया, चंचल सबको समझ रहा है क्या? बाकी लोगों को भी? Yes, sir. रुचिता? यस सर। ये सर मैंने फॉर्मूला लगा के किया तो आंसर आया। आया ना? फिर भी किसी को नहीं आएगा तो कैन आस्क मी, बट जो मैंने बोला वो याद रखो कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कल जो मैंने लिखवाया था सर मैंने हाँ। सर मैंने जो कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया उसमें ऑलमोस्ट 1 रुपी का डिफरेंस आ रहा है। दैट इज Just फाइन, वो about- तो आएगा ही। 1 2 4 5 10 रुपीज का भी आ सकता है, दैट इज फाइन। सर कितना डेसिमल पॉइंट्स को कंसीडर करना चाहिए? 4 डेसिमल मैक्सिमम, नॉट इन Thank द you. फाइनल आंसर, इन Okay. दिस पीवीआईएफए। ये पीवीआईएफए में मैक्सिमम 4 डेसिमल लो। तुम लोग पूरा अगर ये जब हम साइंटिफिक में करेंगे ना इसको सॉल्व, तो हम तो जी। पूरा इक्वेशन एक साथ डाल देंगे। ये पूरा जी। इक्वेशन एक साथ डाल देंगे तो वो सिर्फ 3 या 4 डेसिमल नहीं लेगा, वो तो इसका पूरा 10 डेसिमल सब लेके कर देगा, तो इसलिए आंसर अलग आएगा। अगर ये 3 डेसिमल लेंगे तो ये आंसर आएगा, 4 लेंगे तो थोड़ा अलग आएगा। और अगर इसको साइंटिफिक में सॉल्व करेंगे बाय दिस फॉर्मूला, पूरा एक साथ हम टाइप कर सकते हैं ये साइंटिफिक में, वो भी मैं बताऊंगा, बहुत इजी है। किसी को नहीं आया तो पूरा ये एक साथ टाइप करने के बाद हम निकालेंगे तो आंसर और डिफर करेगा, बट सारे आंसर राइट दिए जाएंगे, सारे आंसर राइट है। एनी मेथड यू कैन फॉलो, राइट? क्लियर? Yes, Now sir. this is question number 12. Mr. P borrowed loan of 50 lakh to construct his bungalow, which is repayable in 12 equal annual installment. आज उसने लोन लिया 5 लाख का, तो प्रेजेंट वैल्यू इज 5 लाख, और 12 साल में वो रिटर्न करेगा एनुअली एक इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तो n is 12 एंड द फर्स्ट बीइंग पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहला इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड में पे करेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%, तो आय हो जाएगा 0.04%। हाउ मच ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट आर पेबल? हर साल उसको कितना पे करना पड़ेगा, हर साल कितना पे करेंगे या कितना मिलेगा, उसी को हम एन्युटी बोलते हैं। तो ए हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला विल बी सेम, यानी दिस और दिस विच एवर यू यूज, ये अब यूज करेंगे जब नोटबुक में लिखेंगे तो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? ये मैं वहां पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि इन लोगों को फाइल चेंज नहीं करना पड़े, राइट? रेफरिंग दैट फाइल। तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर पीवीए, है ठीक है ना? और फिर तुम लोगों को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है? इक्वेशंस और सॉल्विंग किसी को नहीं आएगा तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, बट अभी क्वेश्चन पढ़ के गिवन आइडेंटिफाई करना सबसे बेसिक है। देखो टाइम वैल्यू के हम सॉल्व करने हैं तो फर्स्ट इज रीडिंग द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, वो राइट किया। फिर सेकंड स्टेप ये है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और फॉर्मूला आना भी चाहिए क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया होगा। गिवन और फॉर्मूला पता चल गया, फिर थर्ड इज हाउ टू सॉल्व दैट इन साइंटिफिक, वो आना चाहिए, या नॉर्मल कैलसी या कैसे भी उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी आना चाहिए। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व any sum of time value of money: identifying the given in the question, what formula has to be applied, and how to solve it in any calculator. तो रॉन्ग होने का चांस है ही नहीं।
So can you once again explain the sum? मुझे समझ में नहीं आया ये कैलकुलेट कैसे हुआ. ये 9.3851 तो इससे आएगा, ये जो फॉर्मूला है इसमें से. अब तुम्हारे जी. पास कौन सा कैलकुलेटर? सर अभी तो मैं फोन से कर रहा हूँ. फोन में तुम लोग साइंटिफिक डाउनलोड भी कर सकते हो. 91ES सर्च करोगे, ऐप होता है उसका साइंटिफिक कैलकुलेटर का. बट फोन से कर रहे हो नॉर्मल कैलकुलेटर की साइंटिफिक कैलकुलेटर? साइंटिफिक. तो उसमें ये तुम्हें टाइप करना आना चाहिए. वो जो नॉर्मल होता है कैलकुलेटर इनबिल्ट, वो यूज कर रहे हो क्या? जी. तो ये तो नॉर्मल है ना, 1+r⁴n. तो r क्या है यानी i. तो 1+0.04⁴ कितना आएगा वो निकालना है. या ये पूरा तुम फोन में टाइप कर सकते हो एज इट इज. ब्रैकेट ब्रैकेट आता है क्या देखो, तो वहां पे टाइप करना है. अब तुम्हारा फोन में जो कैलकुलेटर है उसमें ब्रैकेट्स यू कैन यूज और नॉट, और यू कैन टाइप इंडिविजुअल. पहले खाली इतना कैलकुलेट करो, 1 प्लस यानी 1+0.04⁴ ये नॉर्मली कैलकुलेट करो. फिर 1 को उससे डिवाइड करो, उसको नोट करो. फिर 1 में माइनस वो करो और उसको डिवाइड बाय 0.04 करो, तो ये वैल्यू आएगा. मीन्स यू कैन डू इंडिविजुअली इन द नॉर्मल कैलकुलेटर ऑल्सो. बट तुम लोग सब बाय कर लो, इसलिए मैं आज वो सिखा नहीं रहा हूँ. नहीं तो मैं क्या करने वाला हूँ, फोन में मैं डाउनलोड करूंगा ये 91ES का. फोन में ऐप भी आएगा जो कॉलेज में बोलने वाले हैं. और फोन में से मैं स्क्रीन शेयर करके क्या क्या बटन प्रेस करना है और कैसे करना है वो लेक्चर में, एक लेक्चर में रख के उसमें मैं वो सिखाऊंगा. ठीक है? गॉट इट सर. मेरे को वो कंसेप्चुअल थोड़ा था कि ये कैलकुलेशन हम किस लिए कर रहे हैं, तो वो मैं समझ गया फिर. समझ गए ना? हाँ. तो जी. और जिसको नहीं भी समझ रहा है अभी या रिकॉर्डिंग सुन के भी, तो बाद में हम इस पे एक लेक्चर रखेंगे. बट पहले जिसको ये सीखना है, आई विल इन्फॉर्म इन द ग्रुप ऑल्सो कि एवरीवन बाय द कैलकुलेटर. कैलकुलेटर बाय जब तुम्हारे हाथ में होगा और मैं लाइव सिखाऊंगा तो तुम्हें इजी समझ में आएगा. और फोन में मत करो अभी, ठीक है, 1-2 दिन. क्योंकि एग्जाम में तुम्हें वो साइंटिफिक कैलकुलेटर में फास्ट करना आना चाहिए. अगर तुम अभी फोन में प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम में प्रॉब्लम आती है. ऐसे पास्ट ईयर लोगों के साथ हो चुका है. बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने साइंटिफिक ना खरीदा नहीं, एंड में 1 दिन पहले खरीदा, 2 दिन पहले खरीदा, 1 वीक पहले खरीदा, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ. क्योंकि इसमें सिर्फ एक सम नहीं है, ये तो इजी है. आगे बहुत सारे ऐसे सम आएंगे जिसमें बड़े बड़े कैलकुलेशन है और उसको कैसे इजी वे में हम साइंटिफिक में सॉल्व कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिस करने से ही एग्जाम में तुम उसको फास्ट कर पाओगे. तो अगेन फॉर योर बेनिफिट आई एम सेइंग कि जितनी जल्दी हो सकता है साइंटिफिक कैलकुलेटर बाय करो, कॉलेज में लेके जाओ. जब फैकल्टी सॉल्व करवाते हैं तो उसमें प्रैक्टिस करो. जब मेरा लेक्चर बैठते हो या रिकॉर्डिंग सुनते हो तो भी वो साइंटिफिक में कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो कि आ रहा है या नहीं है. और नहीं आ रहा है तो डाउट्स मुझसे पूछो. क्लियर एवरीवन? क्लियर? Then this is question number 13. X is depositing 2000 per annum in a recurring bank deposit which pays 9% per annum compounded interest. How much Mr. X will get at the end of 5th year? 5 साल के बाद कितना मिलेगा उसको हम फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे. तो ये तो हर साल डिपॉजिटिंग एवरी ईयर है, राइट? पर एनम है, 2000 पर एनम. तो ये 2000 तो हो गया हमारा एन्यूटी. एन हो गया 5. रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है. अब फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी का निकालना है कि फ्यूचर वैल्यू? यहाँ पे तो दिया था एन्यूटी ढूंढना है और यहाँ पे दिया था फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. बट यहाँ पे क्या लिखा है, क्या फाइंड करना है? अमाउंट विल गेट, मिस्टर एक्स विल गेट एट द एंड ऑफ 5th ईयर. तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर जो मिलता है वो प्रेजेंट वैल्यू तो हो नहीं सकता है. प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? जो आज मिलता है. 1 महीने बाद भी जो मिलने वाला है, 1 साल बाद भी जो मिलने वाला है, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी जो मिलने वाला है, सबको हम फ्यूचर वैल्यू ही बोलेंगे. तो हमें ढूंढना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी. और ये फॉर्मूला तो है, बट इस फॉर्मूला को यूज नहीं करके जो मैंने ये बताया था ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना. और आर की जगह आई
या स्मॉल आर, एनीथिंग यू कैन राइट। तो ये भी मैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये तो प्रॉपर आया नहीं। तो दिस यू हैव टू, और ये तुम्हें इम्प्लीमेंट करेंगे ये वाला फॉर्मूला। अब a into this, so you will around this, ट्राई कर सकते हो कोई अभी देखो कैसी है या फोन में। और ये तो 1 प्लस आर है, पहले वो कैलकुलेट करो, माइनस करो, जो आएगा उसको यानी 0.09 से डिवाइड करो। Okay, this is also clear to everyone. Any doubt? Then this sum. A machine cost rupees 3 lakh and its effective life is expected to be 6 years. 3 लाख एक मशीन की कॉस्ट है और वो 6 साल तक चलने वाली है। A sinking fund is created for replacing the machine at the end of its effective lifetime, when its scrap value is expected to realize a sum of 20,000 only. थोड़ा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसको समझना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मशीन 3 लाख आज 6 साल बाद भी वो 3 लाख में ही मिलेगी, ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं, और 6 साल उसकी लाइफ है। अब क्योंकि हमारे पास जो ऑलरेडी मशीन है वो 6 साल बाद खराब हो जाएगी, और जब हम उसको स्क्रैप भंगार में बेचेंगे तो उससे 20,000 रुपया मिलेगा, और वो बेच के हमें नई मशीन खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें 3 लाख रुपया 6 साल के बाद चाहिए। और वो जमा करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि हम एक सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे। सिंकिंग फंड क्या होता है? जिसमें हम हर साल कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि कुछ साल के बाद हमारा एक पैसा जमा हो जाए। तो कैलकुलेट द अमाउंट, अगर 8% पर एनम है तो N6 दिया है यहाँ पे, N is given 6, I is given 8%, और हमें एन्युटी ढूंढना है कि हर साल कितना पैसा वो सिंकिंग फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि 6 साल के बाद हमें वो मशीन खरीद सके। तो कॉस्ट ऑफ मशीन 3 लाख तो है, बट हम जो पुरानी मशीन बेचने वाले हैं उससे हमें 20,000 मिलने वाला है। तो हमें जो अमाउंट उस मशीन को खरीदने के लिए 6 साल के बाद चाहिए वो सिर्फ 2,80,000 जमा करनी, बिकॉज 20,000 तो पुरानी मशीन बेचने से मिल जाएगा, तो हमें 6 साल के बाद सिंकिंग फंड से 2,80,000 मिलेगा और पुरानी मशीन बेचने से 20 मिलेगा, तो हम 3 लाख की न्यू मशीन खरीद सकते हैं। राइट, ये क्लियर है जितना अभी मैंने बताया क्वेश्चन? एनी डाउट in what I have explained, what is given in the question? Right? अब ये क्या है? 2,80,000 6 साल के बाद हमें जमा करना है, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू दिया है, एन दिया है, आई दिया है, और एन्युटी ढूंढना है, तो हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी यानी ये वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें FVA दिया हुआ है, विच इज जो हमने निकाला 2,80,000, आर यानी वही जो आई है 0.08, और एन 6 लेके इसको सॉल्व करेंगे और ए का वैल्यू ढूंढेंगे, तो हमारा ये ए का वैल्यू राउंड अबाउट कितना आएगा जो यहाँ पे लिखा है। इट कैन डिफर लिटिल, 38,168 है, तो 38,170 अराउंड 160 80 का कुछ भी आ सकता है, depending how much decimal or you are solving directly in the scientific or how you are solving. तो सॉल्यूशन पार्ट ये कैसे सॉल्व करते हैं, एनईटी, एफवीए, पीवीए के सम,
इसके लिए तो साइंटिफिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। एक्सेल में सर्टिफिकेट डायरेक्ट देती है कि एक्सेल में मैं वो कैलकुलेशन स्टेप वाइज कैसे बताऊं, नोटबुक में तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, लिख के। तो हियर बट बिकॉज साइंटिफिक इज अलाउड, so why you have to solve step wise? सिंपल है कि करना क्या है, ये फॉर्मूला लिखना है, पहले सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, फिर पूरा साइंटिफिक में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं सिखाऊंगा और आंसर बताऊंगा। You don't have to solve step wise in a notebook because scientific calculator is allowed. So now this is the 15th question. A person is required to pay 4 equal annual payment of 4,000 each in his deposit account that pays 10% per year. Find a maturity value. तो ये तो नॉर्मल है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना है। एन्युटी इज गिवन, आई इज गिवन एंड एन इज गिवन, तो कितना वैल्यू आएगा? At the end of 4 years. The same this formula we will using this formula. तो ये तो आ जाएगा तुम लोगों को, annuity is given, I is given, N is given, future value of that annuity with the normal, this formula you have to find, substituting the value. Mr. A plans to send his son abroad for higher studies after 10 years. He expects the cost of studies to be, that is 1 lakh. How much should he save annually to have a sum of 1 lakh at the end of 10 years? ये भी वैसा ही है जैसे हमने सिंकिंग फंड का किया था, यानी मिस्टर ए को 10 साल के बाद अपने बेटे को अब्रॉड भेजना है और अब्रॉड भेजने के लिए 10 साल के बाद उसको 1 लाख रुपया चाहिए। तो 1 लाख क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है, और 10 साल के बाद चाहिए तो एन 10 है, और आई 12% क्वेश्चन में दिया है, तो 12/100, और हर साल वो कितना जमा करना चाहिए उसको वो क्वेश्चन में पूछा है। हाउ मच शुड ही सेव एनुअली? हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर जो भी अमाउंट सेव करना है, मिलने वाला है, पे करने वाले हैं, उसी को एन्युटी बोलते हैं। तो 8 ढूंढना है, 8 फाइंड कर। सेम फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग, दिस फॉर्मूला ओनली। ए ढूंढना है, एफवीए दिया है, आर दिया है, एम दिया है, नॉर्मल। तो ये सब क्वेश्चन में गिवन तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो ना तुम लोग? सॉल्विंग पार्ट तो प्रैक्टिस करोगे और साइंटिफिक लोगे, वो हम अगेन आई विल एक्सप्लेन इट, राइट? अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आएगा। देखो ये ग्रोइंग एन्युटी अभी तक तो तुम लोग को सिखाया नहीं होगा, ये सब मैं अभी नहीं सिखाने वाला हूँ। ग्रोइंग एन्युटी लास्ट ईयर शायद ओमिट कर दिया था, राइट? ग्रोइंग एन्युटी का कैसे निकालते हैं उसका अलग ही फॉर्मूला है जो मैंने अभी तक एक्सप्लेन भी नहीं किया है, राइट? तो ये पूरे को मैं व्हाइट मार्क कर देता हूँ, तो जो भी व्हाइट है वो तुम लोगों को सम नहीं देखना है, राइट? और ये जो एक सम है ना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सम है। इस तरह का सम एग्जाम में भी आता है और इसको बहुत अच्छे से समझना भी पड़ेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस सम के पीछे। अब यहाँ पे क्या दिया है? एबीसी लिमिटेड हैज टू रिटायर ₹1 crore 8% debentures each at the end of 9th and 10 years from now. How much should the company deposit in a sinking fund account? Sinking fund बोला है जब भी कि कितना sinking fund में डिपॉजिट करना चाहिए एनुअली, तो एन्युटी तो तुम्हें ढूंढना है। इन sinking fund account annually for how many years? 5 years in order to meet the debenture retirement needs. 5 years तक हर साल कितना जमा करे ताकि वो 1 करोड़ रुपया 9 साल के बाद पे कर सके और 1 करोड़ रुपया 10 साल के बाद भी पे कर सके। देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। पहले 1 करोड़ ईच एट द एंड ऑफ 9th and 10th, यानी 9th ईयर 10th पे भी कंपनी को 1 करोड़ पे करना है और 10th ईयर एंड पे भी कंपनी को 1 करोड़ पे करना है, और वो 5 साल तक जमा करके रखेगी और 5 साल के बाद जमा नहीं करेगी
तो 5 साल के बाद जो 9 साल के बाद अमाउंट बनेगा उसमें से 1 करोड़ वो पे कर देगी, और फिर जो बचेगा वो भी 10 साल के बाद 1 करोड़ बचना चाहिए, ऐसा कंपनी का रिक्वायरमेंट है। तो हर 5 साल तक उसको एवरी ईयर कितना डिपॉजिट करना है, दैट इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 1 करोड़ 9th और 10th ईयर के वो चाहिए। तो ये जो 9th ईयर पे 1 करोड़ चाहिए और 10th ईयर पे 1 करोड़ चाहिए, ये क्या है? ये फ्यूचर वैल्यू है। 1 करोड़ FV9 मतलब 9 साल के बाद का वैल्यू। 1 करोड़ 10th ईयर के एंड पे भी कंपनी को चाहिए, तो ये फ्यूचर वैल्यू है 10th ईयर के एंड के बाद का, राइट। लेकिन कंपनी जो एन्युटी सेव करने वाली है हर साल, वो सिर्फ 5 साल करने वाली। अगर वो होता कि 9 साल करने वाली है तो हम डायरेक्टली इसके फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर किया और हम ए निकाल लेंगे। बट यहाँ पे वैल्यू भी दो दी है, एक 9 साल एंड का, एक 10 साल एंड का, और जो एन्युटी है वो सिर्फ 5 साल ही पे करने वाली है कंपनी। तो जब भी ऐसा है कि तो हमें क्या करना है, फर्स्ट थिंग यू ऑल हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर इज कि जब भी एन्युटी ढूंढना है और एन्युटी का पीरियड अगर 5 साल है या 6 साल है, तो हमें फ्यूचर वैल्यू जो चाहिए एन्युटी ढूंढने के लिए वो भी 5th ईयर एंड का चाहिए। इफ n is 5 years, n यहाँ पे दिया है 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, वी हैव टू फाइंड द एन्युटी। तो हम 9th ईयर के फ्यूचर वैल्यू से एन्युटी नहीं ढूंढ सकते हमें, क्योंकि n is 5, तो वी नीड द वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। कि 9th और 10th ईयर पे 1-1 करोड़ मुझे अगर देना है तो 5th ईयर के एंड पे मेरे पास कितना पैसा जमा होना चाहिए। अब वो कैसे ढूंढेंगे, वो तो क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो पहले जो 9th और 10th ईयर का 1 करोड़ अमाउंट है, उसको हम 5th ईयर के एंड पे क्या वैल्यू होगा वो ढूंढेंगे। तो 9th ईयर के वैल्यू को हमें 5th ईयर के वैल्यू में अगर कन्वर्ट करना है, कोई भी एक फ्यूचर वैल्यू को पीछे के साल में अगर कन्वर्ट करना है, तो ऑलवेज वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। दिस कॉन्सेप्ट यू शुड रिमेम्बर। मैं ये समझाना और बोलना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास 9th ईयर एंड का वैल्यू है और उससे हमें 8th ईयर का निकालना है, या 5th ईयर का, या 3rd ईयर का, या 4th ईयर का, 9th के पहले कोई भी साल का वैल्यू निकालना है, we will use the formula of present value। ये नोट कर लो, ये याद करो। क्यों नहीं भी समझ में आ रहा है, क्यों, अगर those who are not able to understand why, तो वो चलेगा, why नहीं समझोगे तो भी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। क्लियर है ना कि अगर ये 9th ईयर का दिया और मुझे 5th ईयर एंड का वैल्यू चाहिए तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैंने अब इसमें फॉर्मूला तो यूज करेंगे, तो फ्यूचर वैल्यू तो 1 करोड़ है, आई 8% है 0.08, बट n कैसे आया सर? n सिंपल है, 9th ईयर का वैल्यू दिया है और 5th ईयर का वैल्यू निकालना है, तो 9 - 5, n विल बी 4। 10th ईयर का वैल्यू दिया है और 5th ईयर का वैल्यू निकालना है, तो 10 - 5, तो n यू विल टेक 5। तो n कितना लेना है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फ्यूचर वैल्यू का ईयर माइनस कौन से ईयर का वैल्यू हमें निकालना है, दैट विल बी योर n। तो तुम्हें 9th ईयर एंड का वैल्यू एक मिला, जो क्या है, 5th ईयर के एंड का वैल्यू है। 5th ईयर के एंड का वैल्यू मिला हमें दोनों का, 9th और 10th ईयर के 1 करोड़ का, और उसको मैंने ऐड किया, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ दिस टू अमाउंट at the end of 5th year that I received, जो मैंने यहाँ पे FV5 लिखा है। FV5 ये यहाँ से मिला मुझे, और ये कैसे निकाला ये सबको क्लियर है? Everyone is clear or not? क्लियर है? निशान, बुद्धिमंता, रिया, चंचल, अदर्स, नीरज। This is a concept and very important concept। इस पे तुम लोगों को सम
आने का चांसेस ज्यादा है। बस अब हमारे पास आ गया। नाउ वी विल यूज द नॉर्मल फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और ए ढूंढ, एफ बी आ गया, आर है, एन है हमारे पास। और इस पे और ऐसे टाइप के टेक्स्ट बुक में भी सम्स है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किए हुए हैं, देखो यहाँ पे भी है, और तुम लोगों को मिलेंगे ऐसे टाइप के और भी सम्स, राइट, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर किए हुए हैं, वो भी मैं टेक्स्ट बुक के भी डिस्कस करूंगा एज आई गेट द टाइम। बहुत सारी सम्स हैं हमारे पास उसमें एक्सेल में, and we will discuss the past paper also, and this topic is vast and very important topic. Practice करने से ये टॉपिक आएगा। Finance company advertises that it will pay a lump sum of 14,826 at the end to deposit annually 2,000 for 6 years. 6 साल तक जो 2000 भरेगा उसको 14,826 कंपनी देगी 6 साल के बाद। तो 14,826 is future value, 2,000 is your annuity, n is 6, और इसमें इन्होंने बोला क्या है, what is the interest rate, what is the interest rate, rate of interest निकालने बोला, राइट। अब ये भी साइंटिफिक के बिना सॉल्व नहीं हो सकता है। फॉर्मूला तो एफबीए का ही यूज करेंगे, ये वाला ही, देखो ये वाला ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैसे सॉल्व करना है वो साइंटिफिक होगा, तभी तुम लोग सीख सकते हो। जो वैल्यू दिया है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, आर नहीं दिया है, आर हमें ढूंढना है। तो साइंटिफिक में ना आर को हम एक्स लेके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा जब मेरे पास और तुम लोगों के पास भी साइंटिफिक होगा तब। कॉलेज में भी सिखाएंगे, ये मैं भी वापस सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये सम का कैसे सॉल्व करना है, that we will discuss later, how to solve this equation so everyone can frame from this, right? Clear? Then you want to take up a trip to the moon which cost rupees 10 lakh. तुम्हें मून पे जाना है और 10 लाख रुपया तुम्हें चाहिए उसके लिए, और तुम 50,000 एक साल में सिर्फ 50,000 सेव कर सकते हो, तो और तुम्हें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% मिलेगा। तो हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू वेट इफ द सेविंग अर्न्स 12%? तो इन शॉर्ट तुम मून पे कब जा पाओगे, जब तुम्हारे पास 10 लाख जमा होगा और तुम एक साल में 50,000 ही जमा कर सकते हो और इंटरेस्ट 12% मिलेगा। तो तुम्हें चांद पे जाने के लिए कितने साल वेट करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन में पूछा है। तो एन पूछा है, एन, right? How long we will wait? So you have to find n. What is given? 10 lakh is future value of annuity. 50,000 is annuity. 12 is rate of interest. So future value is given, annuity is given, rate of interest is given, and you have to find n. Right? ये तो मैंने यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व भी किया है इक्वेशन में डाल के, ये साइंटिफिक में भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके बाद कैसे साइंटिफिक में करना है, या इसको कैसे हम एक लॉग मेथड होता है उससे भी कर सकते हैं, बट लॉग नॉर्मल कैलसी में नहीं होता है, तो साइंटिफिक तो चाहिए ही। तो साइंटिफिक में भी इसको 2-3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे भी एन्युटी वाले सम में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने बोला है या एन फाइंड करने बोला है, तो विदाउट द साइंटिफिक कैलसी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। बिना साइंटिफिक के तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 18 एंड 19 सॉल्व कैसे करेंगे वो हम साइंटिफिक कैलसी में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला विल बी सेम, ओनली व्हाट इज नॉट गिवन उसको हम साइंटिफिक में एक्स लेंगे। क्लियर है ना व्हाट आई एम सेइंग? एवरीवन इज क्लियर? ग्रोइंग एन्युटी हम आज डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अब ये डिस्कस करेंगे एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू क्या होता है? जो एट द बिगिनिंग, जनरली अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो मैंने कल भी बोला था कि वो क्या होता है, एन्युटी एट द एंड, और हमें वही फॉर्मूला जो है एन्युटी का पीवीए का वो हम यूज करेंगे। तो पीवीए का ये फॉर्मूला था, ये ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए है, ऑर्डिनरी एन्युटी।
बट अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जो एन्युटी है वो एट द बिगनिंग है, जैसे इस क्वेश्चन में हम रीड करते हैं, द ट्रेजरर ऑफ एबीसी इंपोर्ट एक्सपेक्ट्स टू इन्वेस्ट 50,000 ऑफ द फर्म्स फंड इन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पे दिया है एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग। ये कौन सा इमेज है? अच्छा, ये कोई इमेज बहुत बड़ा है ये। अच्छा, ग्रोइंग एन्युटी का फॉर्मूला कैसे लिखा है उसका इमेज है, हैंड रिटन का। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा इमेज है। बट ग्रोइंग एन्युटी तो अभी हम नहीं कर रहे हैं, कॉलेज में सिखाएंगे, तो आई विल डिस्कस आफ्टर 1-2 weeks when I will take the revision of it. इतना बड़ा इमेज पेश किया किसी ने भाई से। तो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years, और क्या दिया है? He expects that the company will earn 6% interest that will compound annually. The present value of this payment will. तो annuity 50,000 दिया हुआ है, and then and 5 years दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, नेक्स्ट 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ये एन्युटी का। अब डिफरेंस कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला यही है। इस फॉर्मूला में खाली इनटू, लास्ट में इनटू 1+i और कर दोगे। अगर एन्युटी ड्यू है, एन्युटी ड्यू मतलब एन्युटी अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर ऐसे क्वेश्चन में दिया है, तो जो पीवीए का फॉर्मूला है उसको सिर्फ इनटू 1+i से और मल्टीप्लाई कर देना है, या इनटू 1+r। इफ यू आर यूजिंग आर नोटेशन तो इनटू 1+r, या ए के बाद इनटू 1+r कहीं भी लिखो, ए के पहले लिखो, ए के बाद लिखो, या फॉर्मूला के लास्ट में लिखो, आंसर सेम आएगा। वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एन्युटी ड्यू फॉर्मूला इज सेम, ओनली 1+i एक्स्ट्रा है। या क्या कर सकते हो, पहले ये फॉर्मूला से जो आंसर आएगा उसको 1+r से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? वही मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी 1+i खाली एक्स्ट्रा है अगर एट द बिगनिंग है, रेस्ट द फॉर्मूला इज सेम। ये मैंने कल भी फॉर्मूला लिखने बोला था, ठीक है? तो इफ annuity due means at the beginning of the period, then multiply the normal formula into 1+r or into 1+r. Clear है? This is clear to everyone? समझ रहा है सबको ये भी? Then ये भी सबको पता होना चाहिए, present value of a perpetuity. परपेचुइटी क्वेश्चन आया था एक बार मिड सेम में, और वो 15 मार्क्स के लिए आया था, और इतना छोटा सा बस। तो उस साल तो स्टूडेंट्स की चांदी हो गई थी, मतलब 2 लाइन का क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, है ना? बट उसको भी 50% स्टूडेंट रॉन्ग करके आए थे। व्हाई? कैन एनीवन टेल? मतलब इतना इजी क्वेश्चन 50% स्टूडेंट उसको रॉन्ग करके आए थे, मतलब उन्होंने आंसर राइट निकाला पहले, लेकिन सब लोग ने ये सोचा कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 लाइन में खत्म हो गया, तो मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने और एक्स्ट्रा दिमाग लगा के जो राइट आंसर था कट करके कुछ और है जो रॉन्ग है, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल। तो अब यहाँ पे दिया है, फादर हैज इंस्ट्रक्टेड द सन। पहले तो व्हाट इज परपेचुइटी? व्हाट इज परपेचुइटी? परपेचुइटी मीन्स एनी एन्युटी जो फॉर एवर है, जिसका हमें एन नहीं पता है। कोई भी अमाउंट जो हमें कंटिन्यूअस मिलता रहेगा या हम पे करते रहेंगे, और कब तक मिलता रहेगा या कब तक पे करना है वो हमें नहीं पता है, उसको परपेचुइटी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, कंटिन्यूअस एन्युटी को हम परपेचुइटी बोलते हैं, फॉर एवर एन्युटी को हम परपेचुइटी बोलते हैं। क्लियर है सबको व्हाट इज परपेचुइटी? और उसका फॉर्मूला कल मैंने डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे है परपेचुइटी का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी अगर निकालना है तो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट यू हैव टू डू इज
ए स्लैश क्या है? परपेचुइटी। ए क्या होता है? एन्युटी। और ए डैश क्या होता है? परपेचुइटी। तो परपेचुइटी को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करो तो तुम्हें उसका प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो कितना बहुत ही सिंपल सम है। तो इस साल तो नहीं आएगा, एक साल आया था खाली, आज से 3 साल पहले, यानी 25 है, तो 22 के पेपर में तुम्हें मिलेगा जब हम सॉल्व करेंगे, और 15 मार्क्स। तो जैसे कि ये समय A father has instructed the son to pay every year ₹10,000 to his mother. ठीक है ना, पापा तुम्हें भूल के गए, 10,000 अपनी मम्मी को हर साल देते रहना, as long as she is alive, जब तक वो जिंदा है। हमें नहीं पता है, rate of interest 10% है, नहीं पता है, हर साल देना है, तो वो परपेचुइटी हो गया, उसको बोल सकते हो या ए डैश बोल सकते हो। और आए बस इसमें तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो ए डैश अपॉन आ गया, बन गया, खत्म। इतना इजी के तो ऑब्वियस 10 मार्क्स के लिए आया, 5 मार्क्स के लिए आया, वही बोनस ही है ना। तो व्हाट इज परपेचुइटी? ऐसे थियोरी के साथ आ सकता है छोटा क्वेश्चन, तो उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। क्लियर है ये भी सबको? ग्रोइंग परपेचुइटी भी इग्नोर करना है अभी, ग्रोइंग परपेचुइटी अभी मैं नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने कर दिया है। डबलिंग पीरियड और लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोन अमोर्टाइजेशन आज नहीं होगा, लेक्चर में इससे स्टार्ट करूंगा अमोर्टाइजेशन, और ये तुम लोगों को 15 मार्क्स 20 मार्क्स भी आ सकता है। ठीक है, डबलिंग पीरियड में आज खत्म करता हूँ, एक लास्ट सम ले लेता हूँ, तो भी बहुत सिंपल है। डबलिंग पीरियड तो है कि इन्वेस्टर फाइंड्स दैट ही अर्न्स अ 20% रिटर्न, तो कितना पैसा उसके साल में डबल होगा, कितने साल में उसका पैसा डबल होगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो सिर्फ आर चाहिए, आर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, 20%, वॉट एवर परसेंट, कैपिटल आर। उसको डिवाइड बाय 100 करके भी नहीं लेना है, यानी 20 डिवाइड बाय 100, 0.2 नहीं लेना है, 20 ही लेना है। और इसके दो फॉर्मूला है जो मैंने कल यहाँ पे बताए थे। रूल 72 इज 72 अपॉन आर, और रूल 69 0.35 प्लस 69 अपॉन आर। बस आर का वैल्यू खाली डालना है, तो रूल 72 के हिसाब से 3.6 ईयर में डबल हो जाएगा, 72 अपॉन 20, और रूल 69 के हिसाब से यू विल सॉल्व, तो 69 डिवाइड बाय 20, राइट, दैट विल बी 3.45 plus 0.35, so that will be 3.8. तो कितना सबको क्लियर है? यहाँ तक प्रैक्टिस कर लेना है। लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल और डिफिकल्ट और एडवांस एक लेक्चर में और लेने वाला हूँ, जिसमें मैं साइंटिफिक भी सिखाने वाला हूँ, वो मैं कल नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी जो वो है वो तो मैंने शेड्यूल शेयर कर दिया है, ये भी लास्ट नेक्स्ट 4 या 5 लेक्चर्स का।